हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत के अंतर्गत। देखिए, ये चैप्टर जो होगा कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी ये जो है चैप्टर काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है हम भारत के जो है जलवायु के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और उसके हर एक पहलू पर जो है विचार करेंगे। लेकिन आपको पता है, ये सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। So our next topic is the most important here, factor influencing there is a climatic of India. There is an important point here, factor influencing there is a climate of India. The factor influencing there is a climate of India are given below. Their first point here, location and latitudinal extent. There is important here, longitudinal and their location, the whereabout. The India is lies roughly between to the 6° north to 37 north latitude, and the tropical of Cancer pass through the middle of country. You know that, you understand, the tropical of Cancer is a pass through the middle of the country. The southern part began to closer to the equator. The southern parts began to closer to the equator, experience high temperature throughout the year. There is important, the southern part of began to closer to the equator, experience high temperature throughout the year. The northern part, on the other hand, is lies in the warm, is a temperate zone. The northern part, on the other hand, lies the warm temperate zone. Another experience is a low temperature, is a particularly in the winter. There is a low temperature in a particular winter's day here, and water bodies surrounding is a peninsula. India is make a climatic condition is mild along to the coastal area. There is important location and latitudinal extent here. The next year, distance from a sea. There is an important point factor here. Distance from the sea, the factor. The southern is a peninsula. India is surrounding by Arabian Sea, the India Oceans and Bay of Bengal. Hence, this climate of coastal region of India is a equable or the maritime. The contrary, this is a climate of regions located in the interior of the country are cut off from to the oceanic influence. As a result, they have on extreme or continental types of climate here. Note that there is factor distance from a sea. The next year, the northern mountain range. There is an important, the northern mountain range here. The Himalayan and adjoining is a mountain range which extend from the Kashmir in the northern west to the Arunachal Pradesh in the northeast, separate India from to the rest of Asia. And this range is to protect India from to the battles cold and dry winds of the center Asia during to the winter year. Furthermore, they act as an effective physical barrier for the rain varying to the southwest monsoons. The winds to be across the northern
is a frontier of India here. Thus, this is a range act as a climatic divide between India and subcontinent and Central Asia. There is an important point here. The next here factor physiography. That is important here. Physiography is important. The physical features influence the air temperature, atmospheric pressure, and direction of the wind and the amount of rainfall in different part of country. There is a physiograph is important point here. There is a varied about here the physical feature influence their air temperature, atmospheric pressure, and direction of the winds and amount of rainfall in different part of the country. The study there is a map showing the physical feature given to the earlier lesson and find out yourself. That relationship between the relief, temperature, direction of winds and amount of the rainfall with the help of climatic map and give in the lesson. And this will be help you to be understand by the western coastal plain receive a more rainfall then the entire part of the Karnataka and Tamil Nadu lining east side of the Western Ghat. You will be also understand by the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon in the bifurcated into the two parts. One moving along to the Ganga Valley to be west and the other is along there is a Brahmaputra Valley to the east. To locate on your atlas, there is a funnel shaped. Locate on your atlas, there are funnel shaped. The Terapunji Valley and the Masirama is nearby along to the steeps of northern edges of Meghalaya plateaus, and this would be give you a clue by the Mizoram happen to be a rainiest spot in the world. There is the most important for the UPC question. The Maseram happened to be a rainiest spot in world. Not in India, there is world. The next factor here, monsoon wind. The monsoon wind is also is the most important here. There is a change of climate for the India. The complete is a reversible in direction of winds over India is bearing about a sudden change in the seasons. The harsh summer season suddenly giving way to be as abated monsoon or rainy season. And these winds which is the change, their direction is a completely are called monsoon winds. That is complete is called to the monsoon winds. The word monsoon is derived from the Arabic word museum, which mean to the season. The museum which mean to the season. And this wind have is such as a far reaching influence of India as a climate that is a term as a monsoon types of climate. The monsoon types of climate. The nature of these winds can be described with a reference to be a surface distribution of pressure in a different regions of India during to winter and summer season. There is a most important factor here, monsoon wind here. According to the monsoon season here, types come the first, the northern monsoon and its effect. The northeast monsoon and its effect. During the winter, the weather condition is influenced by the high pressure developed over to the northern west part of the subcontinent. And this result in the blowings of cold, dry wind from this region to about to the southern low pressure area lining over to the water bodies surrounding peninsular India. So, and these winds are cold and very dry. And they do not be a case of rainfall is a weather condition under their influence remain cold and dry here. However, whereas this is a northern east monsoon winds is a collect to the moisture while they're passing over to Bay of Bengal. Their bearing the rain is along is a Coromandel and the coast. And the secretary is speaking, these winds are planetary winds now as the northern east trades. In India, there is still land bearing there is winds. The next point here, according to the monsoon here, the south and west monsoon and its effect. The south and west
monsoon and its effect. During the summer, the northern western part of India becomes very hot due to very high temperature. Due to very high temperature, the hot condition here is arrived. This is equivalent to the appearance shift of the sun in the northern hemisphere, and this result in the reversal as the air pressure condition not only is a northwestern India but also on the water body surrounding the peninsula. The peninsula is the most important area. There is a water body surrounding a peninsula. As a result, northern east trade winds are replaced by the southwest monsoon winds. There is an important replacement here, southwest monsoon winds. And then this is the winds are sea bearing and blow over to the warm water bodies before reaching a land, and they are a moisture land and causing the widespread rain over to the most parts of India here. And this period of the southern base monsoon from June to September is known as the raining season for most parts of the country. The next point here, upper air circulation. There is a upper air circulation. The changes in the upper air circulation over India is a landmarks is yet another cases for the sudden outbreak of monsoon in India. And jet stream in the upper air system influence the climate of India in the following way. The first way here important. The first way is important here, a bestial jet stream and its impact. Jet stream and its impact here. During the winter at about 8 kilometer above the sea level, a bestial jet streams blow at a very high speed over to the subtropical zone. This jet stream is bifurcated by Himalaya ranges, and there is a northern branch of this jet stream blow along to the northern edges of this barrier. The southern branch is below to the eastward, south of the Himalayas range is along to the 25 north altitude. It is believed by meteorologists that is a branch of jet stream exercise a significant influence on the winter weather and condition of India. And this jet stream is responsible for the varying western disturbance from to the Mediterranean regions and into India subcontinent here. Winter rain and hailstorm is a northern west plan and occasionally heavy snowfall in the hill region and causing by this is a disturbance, and these are generally followed by there is a cold wave in the wall of northern plain here. And the next point is important here, the way the Australian jet and it is influenced during the summer due to the apparent shift of this sun in the northern hemisphere, and the reversal is upper air circulation take place, and the westerly steam is replaced by the easterly jet streams, which is always it is original to the heatings of the Tibetan plateau, and this lead to be a development of on the assembly called jet stream and centered around of 15th there's northern latitudes as a blowing over to the plains of India, and this help to the sudden onset of monsoon here. The next here, western disturbance and tropical cyclone here. There is an important point here. The inflow of the western disturbance is a moves under the influence of the western jet stream here from their Mediterranean Sea. Its influence of winter weather condition over most part of the northern plain and western Himalayas region here. It's a bearing little rain in the winter months, and this rain is considered to be a very good for the wheat crop in the northern plain here. The tropical cyclone also is developed in the Bay of Bengal, and the frequency and direction of this cyclone influence of weather condition along the eastern coastal during to the October, November, and disturbance here. The December, there is an important time period here. There is a coastals is during to the October, November, and December. The next year is nano effect. Nano effect is important. Weather condition in India are also influenced by EI nano, which is causing widespread flooding and drought in the tropical region of the world. EI is a nano is a narrow warm current which is sometimes
a pair of the coastal is a Peru, South America. It is a temporary replacement of the cold Peru current which normally flow along these coasts and sometimes become a more intense. It is increasing the surface water temperature of the sea by the 10 Celsius. And this warming of tropical Pacific water effect, there is a global pattern of pressure and the wind stream system that including the monsoon wind in the Indian Ocean. It is believed that the is a severest drought of 1987 over India was caused by the EI Nano. The next point here, southern oscillations and its effect here. Southern oscillations and its effect here. The southern oscillation is a pattern of meteorologically change which is often observed between India and Pacific Ocean. It has been to notice that whenever the surface level pressure is high over India oceans, it is low over to Pacific Oceans and vice versa here. And when the pressure is high over to the Pacific Ocean and low over Indian Ocean, the southwest is a monsoon in India tend to be weaker. In the reverse case, a monsoon are mostly likely to be stronger. The most important point here, the factor affecting the climate of India are location, latitudinal extent, distance from the sea, the northern mountain range, and physiographic, monsoon winds, upper air circulation, western disturbance, and tropical cyclone, and formation of EI Nano and southern oscillation. There is a factor here. So note down your notebook. There is a most important point here. यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है भारत जलवायु के अंतर्गत भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले आखिर कारक कौन कौन से हैं और इसका क्या महत्वपूर्ण स्थान है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, जैसे आपको पता ही है कि भारत के साइज, लोकेशन, इसे काफ़ी वेरीड करते हैं इस बातों को कि भारत की जलवायु प्रभावित करने वाले कारक के रूप में देखा जा सकता है। और इवन कि अक्षांश विस्तार भी कहते हैं बीच से ही भारत के जो है कर्क रेखा का गुजरना एक बहुत बड़ी बातों को जो है संकेत करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है यहाँ पर कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहले कारक के रूप में क्या है। तो पहले कारक तो हमारे समक्ष है ही है स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार है। कहते हैं भारत मोटे तौर पर जो है 6 डिग्री उत्तर से लेकर 30 उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित है। यानी भारत को अगर हम मैप में देखें, भारत के जो है ग्लोब्स में देखें, तो भारत की अगर स्थिति देखोगे तो मोटे तौर पर जो है 6 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य ही स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आता है कि कर्क जो है वृत्त देश के मध्य से होकर जाता है, यानी कर्क रेखा जो है मध्य से होते हुए जाता है। कहते हैं विषुववर्तीय वृत्त के पास होने के कारण दक्षिणी भागों में जो है वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाते हैं, यानी साल भर जो है यहाँ पर उच्च तापमान पाए जाते हैं। और दूसरी ओर जो है उत्तरी भाग गर्म शीतोष्ण पेटी में स्थित है। देखिए ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि दूसरी ओर उत्तर भाग में जो है गर्म शीतोष्ण पेटी स्थित है। अंततः यहाँ खासकर शीतकाल में निम्न तापमान पाए जाते हैं, यानी जैसे सर्दी होगा यहाँ पर जो है तापमान बहुत कम आ जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष है समुद्र से दूरी। देखिए समुद्र से दूरी भी है, ये भी एक कारक है जिसका जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है यहाँ पर। यानी समुद्र से दूरी प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर और हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। आपको इस बात के नॉलेज होना चाहिए कि भारत जो है तीनों तरफ से जो समुद्र से घिरा हुआ है, चाहे वो अरब सागर हो, चाहे नीचे हिंद महासागर हो, चाहे बंगाल के साथ बंगाल की खाड़ी हो, तो तीनों तरह से जो है समुद्रों से ही घिरा हुआ है। अंततः भारत के जो है तटीय प्रदेश की जलवायु सम तथा अनुसमुद्री है और इसके विपरीत जो प्रदेश देश के आंतरिक भागों में स्थित है वो समुद्री प्रभाव से अछूता नहीं है। तभी तो देखा गया है कि आपने देखा भी था कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात कि समुद्री क्षेत्र में होने के कारण वर्षा जो होती है काफ़ी होने जो आ जाती है और फलस्वरूप उन प्रदेशों की जलवायु अति विषम और महाद्वीपीय होती है। यानी विषम का मतलब होता है दोस्तों कि ये सम नहीं है, यानी लोगों के फेवरेबल नहीं है, उनको ये सहने लायक नहीं है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है।
यहाँ पर जो अगला पॉइंट आया है उत्तरीय पर्वतीय श्रेणी। देखिए भारत को अगर इतनी विशेषताओं वाला माना जाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है पर्वतीय श्रेणी। कहते हैं पर्वत का होना भारत के लिए एक वरदान सिद्ध है, क्योंकि ये जो है बाहर से आने वाले हवाओं को रोकती है और कई मुसीबतों से भारत को जो है बचाती भी है। और आप इस बात से जो है भली भांति परिचित हो, क्योंकि भारत का अगर उत्तर क्षेत्र में देखोगे तो हिमालय से घिरा हुआ है। और कहते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में दरारों होने के कारण जो है बहुत से आक्रमणकारी को जो है बहुत से समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। तो ये जो है उत्तरी पर्वतीय श्रेणी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है यहाँ पर कारक के रूप में कि हिमालय व उसके अब 7 की श्रेणियाँ जो है उत्तर पश्चिमी में कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ये फैली हुई है। अब भारत का शेष दक्षिण से अलग करती है और ये श्रेणी जो है शीतकाल में मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक जो है ठंडी और शुष्क पवनों से भारत की रक्षा करती है। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी और शुष्क पवनों से भारत की रक्षा करती है, यानी भारत में प्रवेश होने से जो है रोकती है। और कौन रोकती है? पर्वत श्रेणियाँ। कहते हैं साथ ही वर्षादायिनी दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने के सामने एक प्रभावी अवरोध भी बनती है, क्योंकि ये जो होते हैं पर्वतों से टकरा के आपस रिटर्न हो जाती है ताकि वो भारत के उत्तरी सीमाओं के पार न कर सके। और इस प्रकार ये श्रेणी जो है भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया के बीच एक जलवायु विभाजक कार्य करती है। तो उत्तर पर्वतीय श्रेणी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर है, और यह भारत का एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षा कवच के रूप में जाना जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है स्थलकृत। देखिए स्थलकृत बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि स्थलकृत का मतलब ही होता है स्थल। देश के विभिन्न भागों में स्थलकृत जो है लक्षण वहाँ के तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवने की दिशा तथा वर्षा की मात्रा को काफ़ी प्रभावित करती है। पिछले पाठ में दिए गए स्थलकृत लक्षणों को दिखाने वाले मानचित्र का अध्ययन कीजिए तथा स्थलकृत तापमान, पवनों की दिशा तथा वर्षा की मात्रा में जो है विद्यमान जो है पारंपरिक संबंधों के इस पाठ में दिए गए हैं। कहते जलवायु मानचित्र की मदद से जो है स्वयं ही ज्ञात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि इतना कहाँ संस्कृति जो है इसके फेवर में है। इसके आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित कर्नाटक व तमिलनाडु आंतरिक भागों की तुलना में जो है पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा अधिक होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया। आप यह भी समझ जाएंगे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा 2 भागों में विभक्त हो जाता है। और क्यों होता है? इसकी एक शाखा जो है गंगा घाटी के साथ साथ और पश्चिमी की ओर बढ़ती है तथा दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र घाटी के साथ साथ पूर्व की ओर चलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात दर्शाता है। पहला जो है शाखा बंगाल की घाटी के साथ चलता है, दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र घाटी के साथ चलता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये। अपने एटलस में मेघालय पठार के दक्षिण किनारों पर स्थित कीप के आकार की जो है चेरापूंजी घाटी है तथा उसके पास जो है मेजोसिराम की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए ये बात आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि मेजोसिराम जो है आखिर इस नाम को क्यों यहाँ पर लिया गया। तो आपको इस बात को ज्ञात होना चाहिए कि मेघालय जो है एक क्षेत्र, देखिए मेघालय एक राज्य है और उसमें जो है चेरापूंजी एक छोटा सा स्टेट जैसा है। ठीक है, और इसी के जगह जो है मिजोरम एक क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है 1000 जो है 80 रिकॉर्ड सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जो कि कहा जाता है कि पूरे विश्व में ये सबसे अधिक जो है रेनफॉल होने वाला स्थान है। तो देखिए ये कई बार जो है कंपटीशन के जो एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा विश्व में क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि जो है मेजोसिराम एक ऐसा जगह है जो कि इंडिया में है, मेघालय में है, चेरापूंजी स्थान है, वहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसको आपको समझने की सूत्र प्राप्त होगी कि मिजोरम संसार की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्यों है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाई गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मानसून पवने। देखिए मानसून पवने भी एक कारक हो सकती है जो कि काफ़ी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। भारत में पवनों की दिशा की जो है पूर्णतः उलटने से जो है ऋतुओं में अचानक परिवर्तन हो जाती है और कठोर जो ग्रीष्मकाल अचानक उत्कृष्टता से प्रतिष्ठित वर्षा ऋतु में बदल जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आ गया कि कठोर ग्रीष्मकाल अचानक
जो है उत्कृष्टता से प्रतिष्ठित वर्षा ऋतु में बदल जाती है और इस प्रकार जो है दिशा बदलने वाली पवनों को मानसून पवन कहते हैं। यानी दिशा बदलने वाले पवनों को क्या कहते हैं? मानसून पवन कहते हैं। और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है ऋतु। मौसमी शब्द का अर्थ होता है ऋतु। और इस पवनों की भारतीय जलवायु पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि इसे मानसून प्रकार की जलवायु भी कहा जा सकता है। यानी से पवनों को भारतीय जलवायु पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि इसको मानसूनी प्रकार की जलवायु भी कहा जाना कोई गलत नहीं होगा। मानसून को जो है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। यानी मानसून को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून के रूप में भी वर्णित करना कोई गलत नहीं होगा। और साथ में इसको जो है दो भागों में बांटना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तरी पूर्वी मानसून एवं उसका प्रभाव का, तो ये साफ दर्शाता है कि शीतकाल में मौसमी दशाएं जो है सामान्यतः उपमहाद्वीपों के उत्तरी पश्चिमी भाग में विकसित उच्च दाब क्षेत्र के द्वारा काफ़ी प्रभावित होती है। और परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में ठंडी शुष्क पवनें दक्षिण के प्रायद्वीपीय जो है भारत के घेरे हुए जलीय भागों पर फैले निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलने लग जाती है, क्योंकि ये पवनें ठंडी एवं शुष्क होती है, यानी कोल्ड एंड ड्राई होती है, अंततः वर्षा नहीं करती है तथा इस पवनों के प्रभाव से जो है मौसमी दशाएं ठंडी एवं शुष्क रहती है। कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें जो है बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, यानी ह्यूमिडिटी ग्रहण कर लेती है। और ह्यूमिडिटी के कारण आपको पता ही है पसीने आते हैं, लेकिन जो है गर्म नहीं होती है। और कहते हैं कोरोमंडल तट पर वर्षा काफ़ी होती है। वास्तव में ये पवनें स्थायी या भूमंडलीय पवनें हैं, जिन्हें उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवन भी कहते हैं। यानी इन्हें उत्तरी जो है पूर्वी व्यापारी पवन के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत मूलतः जो स्थलीय पवनें हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है इसके अंतर्गत कि दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, ग्रीष्म काल में भारत का जो है उत्तर पश्चिमी भाग जो है ऊंचे तापमान के कारण अधिक गर्म हो जाता है। ऊंचे तापमान के कारण अधिक गर्म हो जाता है और इस समय जो है सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलोध में होती है। यानी सूर्य की स्थिति जो होती है उत्तरी गोलोध में पाई जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप न केवल उत्तर पश्चिमी भारत में बल्कि प्रायद्वीपों घेरने वाली जलीय भागों में भी वायुमंडलीय दशाएं एकदम उलट जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवनों का स्थान दक्षिण पश्चिमी पवनें ले लेती है। देखिए इसका प्रभाव क्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ा कि उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनों का स्थान जो है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें ले लेती है, क्योंकि ये पवनें गर्म समुद्र के ऊपर से बहने के कारण आर्द्र हो जाती है। अंततः आर्द्रता से लदी हुई ये पवनें भारत के अधिकांश भागों में दूर दूर तक भारी वर्षा करती है और इन दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों को वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है और इसकी अवधि जून से सितंबर तक की होती है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसकी अवधि जून से सितंबर तक होती है। उसके पश्चात जो है कारक के रूप में उत्तरी वायु परिसंचलन, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि उत्तरी वायु परिसंचलन क्या है। ये कारक के रूप में है। भारत में मानसून के अचानक आगमन का एक अन्य कारण भारतीय भूभाग के ऊपर वायु परिसंचलन में होने वाले परिवर्तन भी है। और कहते हैं ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली जो है जेट वायु धाराओं भारतीय जलवायु को विभिन्न प्रकार से काफ़ी प्रभावित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला तो प्रभाव यही देखने को मिलता है कि पश्चिमी जेट वायु धारा था उसके प्रभाव, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है कि शीतकाल में जो है समुद्र तट के लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है पश्चिमी जेट वायु धारा अधिक तीव्र गति से समशीतोष्ण और कटिबंधीय के ऊपर चलती रहती है। और ये जेट वायु धारा जो है हिमालय की श्रेणियों द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाती है और इस जेट वायु धारा की उत्तरी शाखा इस अवरोध के उत्तरी सिरे के सहारे चलती ही रहती है। दक्षिण शाखा हिमालय श्रेणी के दक्षिण में 25 सेल्सियस उत्तर अक्षांश के ऊपर और पूर्व की ओर चलती है। कहते हैं मौसम विज्ञानियों का ऐसा विश्वास है कि यह शाखा जो है भारत की शीतकालीन जो है मौसमी दशाओं को काफ़ी प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ये जो है जेट वायुधारा भूमध्य सागरीय प्रदेशों से पश्चिमी विक्षांपों को भारतीय उपमहाद्वीपों में लाने के लिए उत्तरदायी भी होती है। और कहते हैं उत्तर पश्चिमी मैदानों में होने वाली शीतकालीन वर्षा तथा ओलावृष्टि तथा जो है पहाड़ी प्रदेशों में कभी कभी होने वाली भारी हिमपात इन्हीं
जो है विक्षोभों का परिणाम ही होता है। तत्पश्चात संपूर्ण उत्तरी भारत में शीत लहरें चलती रहती है, यानी पूरे देखा जाए तो संपूर्ण उत्तर मैदान में शीत लहर चलती है इस समय के दौरान। उसके पश्चात है पूर्वी जेट वायुधारा था उसके प्रभाव। देखिए पूर्वी जेट वायुधारा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है कि ग्रीष्म काल में सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में जो है लंबवत होने के कारण ऊपरी वायु परिसंचरण में जो है उलटफेर हो जाती है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होने के कारण जो है ऊपरी वायु परिसंचरण में जो है उलटफेर हो जाती है और पश्चिमी जेट वायुधारा के स्थान पर पूर्वी जेट वायुधारा चलने लग जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी जेट वायुधारा के स्थान पर कौन चलने लग जाती है, पूर्वी जेट वायुधारा चलने लग जाती है। और तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण पश्चिमी जेट उत्तर की ओर खिसक जाती है और इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी भाग में पूर्वी ठंडी जेट वायुधारा विकसित हो जाती है और यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास महाद्वीपीय भारत के ऊपर चलती है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के अचानक आने में काफ़ी मदद करती है। उसके पश्चात है पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट आया है कि पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी जेट प्रभाव के साथ जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश से आते हैं और यह देश के उत्तरी मैदानी भाग व पश्चिमी हिमालय प्रदेशों की शीतकालीन मौसमी दशाओं को काफ़ी प्रभावित करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये शीतकाल में थोड़ी वर्षा लाते हैं और यह थोड़ी सी वर्षा भी जो है उत्तरी मैदान में गेहूं की खेती के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध भी होता है, यानी गेहूं की खेती के लिए ये आदर्श जो है समय होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में पैदा होती है और इन चक्रवातों की तीव्रता तथा जो है दिशा पूर्वी तटीय भागों की मौसमी दशाओं को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में काफ़ी प्रभावित करती है। उसके पश्चात है एल नीनो प्रभाव। देखिए एल नीनो प्रभाव क्या है, कहते भारत में मौसमी दशाएं एल नीनो से काफ़ी प्रभावित होती है और यह संसार के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशुद्ध बाढ़ों और सूखों के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए एल नीनो प्रभाव क्या होता है, ये जो होती है कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बाढ़ और सूखे के लिए काफ़ी उत्तरदायी होती है। एल नीनो एक जो है सक्रिय गर्म समुद्री जलधारा है जो कभी कभी दक्षिण अमेरिका के जो है पेरू तट से कुछ दूरी पर दिसंबर के महीनों में दिखाई देती है। कहते हैं पेरू जो है ठंडी धारा के सामान्यतः इस तट के सहारे बहती है के स्थान पर यह अस्थायी धारा के रूप में बहने लग जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी अधिक तीव्र होने पर यह समुद्र के ऊपरी जल के तापमान को 10 सेल्सियस तक जो है बढ़ा भी देती है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय जल के गर्म होने से जो है भूमंडलीय दाब वह जो है पवन तंत्रों के साथ ही जो है हिंद महासागर मानसून पवनें भी काफ़ी प्रभावित होती है। तो देखिए हिंद महासागर के मानसून को प्रभावित होना स्वाभाविक रहता है कि पवन ने तो प्रभावित करेगी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 1987 में भारत में भयंकर सूखा एल नीनो के ही परिणाम स्वरूप था। देखिए भारत में जो 1887 में हुआ था, जो सूखा आया था और इतनी भयंकर थी, तो इसी एल नीनो के कारण हुआ था 1987 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाता है एल नीनो के परिणाम। उसके पश्चात हमारे समक्ष दक्षिण दोलन तथा उसका प्रभाव। देखिए दक्षिण दोलन तथा उसका प्रभाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान अपना जगह पर रखता है। कहते दक्षिण दोलन जो है मौसम विज्ञान से संबंधित जो है वायु दाब में होने वाले परिवर्तन के जो है प्रतिरूप ही है, यानी दक्षिण दोलन जो है मौसम विज्ञान से संबंधित वायु दाब में होने वाले परिवर्तन का ही प्रतिरूप है और यह हिंद एवं प्रशांत महासागरों के मध्य प्राय देखा जा सकता है, यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में देखने को साफ मिलेगा। ऐसा देखा गया है कि जब वायु दाब हिंद महासागर में अधिक होती है तो प्रशांत महासागर पर ये कम होती है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब वायु दाब जो है हिंद महासागर में अधिक होती है तो प्रशांत महासागर पर बहुत ही कम पड़ती है, अथवा इस दोनों महासागरों पर जो है वायु दाब की स्थिति इसकी उलट होती है। जब वायु दाब प्रशांत महासागरीय क्षेत्र पर अधिक होती है तो जो है हिंद महासागर पर निम्न या कम होती है तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अधिक कमज़ोर होती है और इसके विपरीत पश्चिम में मानसून के ताकतवर होने का काफ़ी आसार भी हो जाते हैं, यानी काफ़ी ताकतवर जो है मानसून यहाँ पर हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसके जो कारक के बारे में हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की है और उनके बारे में जो है इम्पोर्टता को भी दर्शाया। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको जानना समझना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गया है तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है
दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण सेंटर का हेल्प करना है। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। देखिए त्रिपाण सेंटर एक बात हमेशा कहता है, इसको आपको समझना चाहिए कि कभी वीडियो को अधूरा मत देखिए, ठीक है, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहता कि अधूरा जानकारी के साथ जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो अधूरा जानकारी के साथ रहें, ठीक है। वीडियो लंबी रहती है, कारण इसका ये रहता है कि इसमें बहुत कुछ समझाई जाती है, बहुत कुछ आपको विस्तार से मिलता है। तो कहते हैं अगर आपको सागर पता रहेगा तो उसमें से गागर उठाना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, यानी सागर से पानी एक लेना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो अगर टॉपिक ही आपको समझ में आ जाएगा तो सोचिए आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर सकोगे। कहते हैं रटने वाला चीज़ कभी भी कोई बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहता है, इसलिए त्रिपाण सेंटर जो है विस्तृत बनाता है और समय समय पे जो है क्वेश्चन आंसर को भी आपके समक्ष लाता है। इसका आपने कुछ समय में देख ही भी लिए होंगे, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप रिसर्च कीजिएगा कोई भी टॉपिक तो त्रिपाण सेंटर आपको नज़र कहीं भी नहीं आएगा। अगर आप सब्सक्राइब करके चैनल रखिएगा तो आपको जो है होम पेज मिलेगा और होम पेज पे जाते ही आपको सारे वीडियो आपको समक्ष आ जाएगा। अगर आप किसी क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट जो है वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा, जो क्लास में आप पढ़ते हो उस क्लास की वीडियो को देखिए, समझिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।